सर्व विद्यार्थ्यांना नमस्कार. बेटा, आज जे आपण अभ्यासणार आहोत. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड चॅप्टर ऑफ 10th science part 1, that is your periodic classification of elements. Okay, so in this chapter basically we are going to study six different things. In that, first is the element and their classification. Second one is the Newland octaves. Sorry, second one is the Drobenier triads. Third one is the Newland's octave. Fourth is the Mendeleev's periodic table, and last is modern periodic table. So basically, beta, when we are considering about this chapter, it consists very high weightage in your examination. Most of the questions has been repeated from this second chapter as well as from the third chapter. So, as through the exam perspective, you have to by heart this chapter, and as well as you have to memorize it for your lifetime, because it is not only for the 10th but it is also important for the perspective of 11th 12th science, as well as it is also important for the examinations like CT, NEET, as well as for the MPC and UPC examinations too. Okay, so according to this, we have to memorize it and we have to by heart it. So this is not only the chapter which is for your examination of 10th, but it is a part of a syllabus of MPC and UPC civil services examinations too. So remember that you have to by heart it. As when I am teaching, I will use some highlighters here, which is important for your examination, as well as I will share when the part of when the syllabus has been teaching at that time. If some part of MPC UPC has been asked, such part also I will highlight it, and while highlighting I will share it that this part may be asked in MPC or UPC. So before starting the syllabus, Vida, our online and offline batches has been started here now. So those who want to join our classes, they can contact me. My contact number is in the description box. You can go through it and you can call to me. Our class, online classes is being conducted by the Zoom classes. In the online section or in the online session, if you have any kind of doubt after the end of the lecture, we have a 15 minutes of session for doubt clearation daily. It's daily. Plus, you will get an access of recorded lectures uh, of my teaching. You can have the revision throughout the year. So those who want to join our classes, they can join us. Every Saturday we have a test. We do continuous assessment. All your progress has been shared to your parents WhatsApp group. So we will share one question paper in the group. You have to download it. You have to write the answer. You have to write your name and the supplement number at the header of the page, and you have to photo it, you have to PDF it, and you have to share to my number. We will assist it and we will share your marks. Accordingly, we do these things. So from the 12 years, we have an excellent result. We have 100% result since from the 12 years. So those who want to join our classes, they can contact us. So let's begin with the chapter periodic classification of elements. Before studying, I want to ask some questions. Just recall, what are the types of matter? Do you know what are the types of the matters?
Anyone? Hmm? No one. Sure. So let's make it very simple with the help of AI. Using AI, we will make it very easy and learnable. Okay. Okay. It will take a little bit time. So here, so matter exists in different forms such as solid, liquid, gases, plasma. Okay, in which form matter is present? Matter is always present in solid, liquid, gases, and sorry, sorry, plasma. It is also present in plasma. Okay, so elements are classified into metals, non-metals, and metalloids. Metals, elements. Elements are mainly classified into metals, non-metals, and metalloids. Okay, so the smallest particle of the matter are atoms. The smallest particles, very smallest particle of the any kind of matter, okay, are known as atoms. Basically, these atoms we call as proton, neutron, and electrons. Okay, so the molecules of elements contain identical atoms. Molecule of an element contains an identical atoms, while molecules of compounds contain atoms of different elements chemically bonded. See, अभी यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई एलिमेंट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट का है तो वो एक ही टाइप का एटम दिखाएगा। अगर किसी एसोसिएशन से बनता है, किसी अदर एलिमेंट के एसोसिएशन से बनता है, फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कार्बन। सो कार्बन अगर मैं ग्राफाइट लेता हूँ तो ग्राफाइट के अंदर तो प्योरली कार्बन ही होता है, राइट? होता है ना? सो इन दिस the main constituent or the main atom is carbon only. For example, let's take another example here. अभी मैं क्या करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, हम ग्लूकोज लेते हैं बेटा। ग्लूकोज में भी कार्बन होता ही है, सी होता है, C6H12O6, बट इसमें और एक एसोसिएशन भी है H12 और O6, तो एक कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन से बना है। सो ये केमिकल बॉन्ड है और इसकी वजह से क्या है कि हमें अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग एटम्स हम देख सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं हम। ओके, पढ़ भी सकते हैं। सो ये तो हो गया इसके बारे में। ओके, मैटर, देखो मैटर में क्या है बेटा, मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली टू टाइप्स,
स्टेट मैटर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। स्टेट मैटर में हमें हमने अभी देखा कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है। हमने ये क्लास 7th में भी पढ़ा था। सॉलिड को फिक्स शेप होता है, उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड का भी हमने देखा था, फिक्स वॉल्यूम होता है और वेरिएबल शेप हो सकता है लिक्विड का, क्योंकि जो इससे उसका जो वेसल होता है, जैसे वेसल का शेप रहेगा वो उसी शेप के अनुसार वो लिक्विड फॉर्म उसको ढाल लेगा, वो शेप बना लेगा खुद का, राइट। हम जब पानी की बोतल अलग अलग डिजाइन के ले आते हैं स्कूल में, हम देखते हैं तो अलग अलग बोतल के शेप्स के अंदर अलग अलग वॉल्यूम का वाटर फिक्स हो जाता है। तो यही है बेटा, बाकी कुछ नहीं। ओके, गैस नो, हाँ, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, उसका कुछ भी शेप वगैरह नहीं होता है। प्लाज्मा इट इज आयोनाइज्ड, हाई एनर्जी स्टेट होता है। हाँ, जो बच्चे फैब्रिकेशन का काम करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स फैब्रिकेशन का काम करते हैं उनको इजीली याद रहेगा। प्लाज्मा मतलब एक प्लाज्मा टाइप का एक वेल्डिंग भी आता है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है फॉर वेल्डिंग द जॉइंट्स ऑफ फ्रेम्स। ओके, कार का जो फ्रेम होता है ना, मेन फ्रेम, लैडर फ्रेम या फिर उसका बॉडी फ्रेम जो होता है, उसको वेल्ड करने के लिए जो रोबोटिक आर्म्स से वेल्ड किया जाता है, तो दैट इज डन बाय द प्लाज्मा वेल्डिंग। ओके, वो प्लाज्मा वेल्डिंग होती है और वो जल्दी टूटती नहीं है। हाँ, जैसे एम्बुलेंस सीमेंट, भैया ये दीवार क्यों नहीं टूटती, तो इसके लिए होता है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो टूटेगा, टूटेगा तो तू कैसे बचेगा बाबा, करेक्ट है ना। तुझे तो बचाना चाहिए, तो इसीलिए तो कंपनी क्या करती है, हाई एंड का जो वेल्डिंग है तो वही यूज करते हैं, तो दैट इज द प्लाज्मा। तो याद रखो ये। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर में क्या होता है कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होता है। मिक्सचर में होमोजीनियस है और हेटेरोजेनियस। मिक्सचर में क्या होता है, एक ही अगर एलिमेंट से बना हुआ अगर रॉक होता है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि बेटा एक कैल्साइट नाम का एक मिनरल है। कैल्साइट नाम का एक मिनरल है और वो ह्यूज इतना बड़ा है। तो तब अभी हम इसे मिनरल कहेंगे, ये बड़ा साइज में है और सिंगल कॉन्स्टेंट का है। अगर ये मिनरल भी होता है तो इतना बड़ा हो गया साइज में, सो इट इज कॉल्ड एज कैल्साइट मिनरल रॉक। ओके, बड़ा है तभी भी मिनरल ही बोलते हैं, बट उसको रॉक भी बोलते हैं साइड में। सो वो एक ही केमिकल कॉन्स्टेंट दिखाएगा। ओके, एक ही केमिकल कॉन्स्टेंट दिखाएगा, सो कॉल्ड एज होमोजीनियस। अगर वो एसोसिएशन से बनता है, किससे बनता है, अलग अलग एलिमेंट से बनता है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए बेटा हम लेते हैं ग्रानाइट। आपको पिंक ग्रानाइट कलर ग्रानाइट मालूम है, बेसिकली हम फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं, फ्लोरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। रेड कलर का होता है ना, उसमें व्हाइट कलर के ग्रेन्स होते हैं, ब्लैक कलर के ग्रेन्स होते हैं, कुछ कुछ रेड फ्लैश रेड कलर के होते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये अलग अलग मिनरल्स है और ये जब हर एक अलग अलग मिनरल एसोसिएटली फॉर्म होता है, कूल होता है और एक रॉक बनाता है बड़ा ह्यूज, तो हम इसे कब तब क्या कहेंगे, हेटेरोजेनस। तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा, ये याद रख लो, जिनको अगर आगे जाके बीएससी में केमिस्ट्री करना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनालिटिकल एंड फिजिकल, ये सब चीजें आपको याद ही रखनी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या है ना बेटा, सो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो है ये बेस्ड किया जाता है उनके प्रॉपर्टीज पे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स और स्पेशल ग्रुप्स। सो इन शॉर्ट में आपको नोट्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पढ़ने के लिए है, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद योर एग्जामिनेशन। आपको डिस्क्रिप्टिव ही लिखना है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्टिव ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये मेटल्स दिया है, यहाँ पे मेटल्स में आपको कहा गया है कि गुड कंडक्टर्स, मेलेबल, शाइन। ओके, मेलेबल का मैं मतलब आपको समझाता हूँ। गुड कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हीट को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स। मेलेबल किसे कहेंगे हम, आप फॉर एग्जांपल आप क्या कीजिए, आप लोहे का एक सरिया लीजिए, हाँ, जो रॉड होता है ना मेटल का, लोहे का, आयरन का, उसे कट कीजिए। कट करने के बाद उसका जो कट वाला एक्सपोज्ड सरफेस वो कैसे चमकता है, शाइन होती है ना उसे, तो उसे कहते हैं मेलेबल।
तो उसका शाइन होता है। अगर लोहे के रॉड को हम गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है बेटा। हाँ, तो ये बड़ा होने का मतलब क्या है कि वो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, केमिकल बॉन्ड्स है, ये क्या हो गए हैं, ये लूज हो गए, उनका जो बॉन्ड है ना ये लूज हो गए, इसलिए वजह से वो एक्सपांड हो गए। जैसे ही वो कूल हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वापस रीगेन कर लेगा ओरिजिनल शेप एंड साइज। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो नॉन मेटल में हमने ये भी पढ़ा था कुछ, मैं रिवीजन ले रहा हूँ तो बेटा आपको ये बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट इसमें नहीं है, आप चाहे तो मैं वापस जा सकता हूँ। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिए सर, आप डायरेक्ट लेक्चर्स लीजिए, तो मैं ऐसे कुछ चीज़ें आपको रिकॉल नहीं करूँगा अगली बार से, इस बार से नहीं, अगली बार से। ओके, सो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं ये बेटा, जो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये ब्रिटल होते हैं जैसे चॉक की तरह, ऑफन गैसेस, मेनली गैसेस की तरह होते हैं। मेटोलाइट्स, मेटोलाइट्स जो है ना ये दोनों भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जैसे कि सिलिकॉन, बोरॉन, ये जो है ये आपके मेटोलाइट्स होते हैं। कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं जैसे कि नोबल गैस है, हाइड्रोजन्स है, अल्कली है, मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स है, लैंथेनाइड्स है, एंथेनाइड्स है, हाँ, एक्टिनाइड्स। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा ना बेटा, तब आपको सब चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी। तो अभी इसे मैं कुछ भी हाथ नहीं लगाऊंगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है अपना एटम। इसके सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक मतलब जो एटम है तो इसके अंदर एक और एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या होता है ना बेटा, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक इमेज लिखिए आप, देखिए ये इमेज देखिए प्रॉपरली आपको दिखेगा। मैं जो भी पढ़ाना चाहता हूँ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो 2 मिनट दीजिए, ये डाउनलोड होने के लिए बफर हो रहा है। इससे तो जल्दी ये डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए बेटा, देखिए मेटल है, यहाँ पे आपको शाइन दिख रहा है, बट यहाँ पे नॉन मेटल में कोई भी शाइन नहीं है। सो एलिमेंट ऐसे होता है, एक सिंगल होता है, और ये कंपाउंड जो है ये मिक्सचर से होता है। मिक्सचर कैसा होता है, तो एक होमोजीनियस भी हो सकता है और एक हेट्रोजेनस भी हो सकता है। एटम क्या है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये पूरा एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अभी अभी सब एटॉमिक लेवल पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ब्लू कलर वाला दिया गया है ये आपका प्रोटॉन है, ये रेड कलर का दिया गया है वो न्यूट्रॉन है, जो येलो कलर के हैं जो एक फिक्स रिंग में घूम रहे हैं तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब एटॉमिक लेवल में आते हैं। हाँ, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स वर्सेस कंपाउंड, तो यहाँ पे देखेंगे आप टू और मोर सेम एटम्स, बट यहाँ पे क्या हो गया है कि टू और मोर डिफरेंट एटम्स, यहाँ पे कुछ अलग एसोसिएशन भी आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक अदर एलिमेंट, अदर लाइक रॉक या फिर मिनरल वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। मिनरल तो एक ही होता है, अगर मिनरल्स अलग अलग मिनरल्स एक साथ आए तो तब बन जाता है एक रॉक, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक, हेट्रोजीनियस रॉक बोलते हैं हमसे। जस्ट आपने अभी पढ़ा था, मेरे हाथ से बहुत कुछ ओपन हो गया है। तो आपको यहाँ पे चार्ट दिया गया है, आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। हाँ, ये नहीं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, 1-2 मिनट वापस रख रहा हूँ, ये प्रॉपर देख लीजिए। जो अभी ऊपर का पढ़ा था तो वही है। चलो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेटा। सो देखिए बेटा कि प्रीवियस सैटरडे में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट जो होते हैं, ये इनके जो एटम्स है
किसी भी एटम का जो एलिमेंट होता है ये एक ही टाइप का होता है। सो तो टुडे हमें कितने एलिमेंट्स मालूम है? सो वी आर नोइंग अबाउट 118 एलिमेंट्स। ओके, ये साइंटिफिक वर्ल्ड में हमने 118 एलिमेंट्स का क्या किया है, हमने खोज किया है। ओके, सो हाउएवर अराउंड द ईयर ऑफ 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वेर नोन। तब सिर्फ 30 ही एलिमेंट 1800 तक हमें मालूम थे, बट आज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमको मालूम है। टेक्सचुअल में आपको दिया है एक 118, बट एज पर अब जैसे आगे जाओगे, हायर एंड स्टडीज में जाओगे, तो हायर एंड स्टडीज में आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको मोर देन 250 प्लस एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे बेटा। ओके, तो ये ऐसे खोज होती ही रहती है एलिमेंट्स की, और ये ऐड होता ही रहता है। सो मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टू द पोस्ट टाइम। जैसे ही आप आगे जाओगे समय में, तो जैसे समय में आपको इसमें रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, तो जैसे आगे आप आगे जाओगे तो आपको ये डिस्कवर होते ही जाएगा। क्या मालूम हम आप में से कोई एक ऐसा बच्चा मिले या फिर हो जो आगे जाके कोई एक नया एलिमेंट ढूंढे। सो मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स वेर गैदर्ड to easy to the study, such as large number of elements. Scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them. You know that initially classification of the elements are classified into groups of metals and metalloids. Sorry, metals and non-metals. तो हमने इनिशियली ये पढ़ा था कि एलिमेंट जो होता है ये ग्रुप के दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहा जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मैं येलो कलर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको मेमोराइजेशन के लिए भी हेल्प करेगा, साइड बाय साइड आपको सीईटी के लिए, नीट के लिए और एमपीसी यूपीसी के लिए भी हेल्प हो जाएगा। तो येलो कलर आपको याद रखना है, इट इज फॉर योर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। So later on, another class of elements called metalloids was noticed. आगे जाके एक मेटोलाइट्स नाम का भी एक पार्ट है जो ढूंढा गया या फिर उसको नोटिस किया गया। As the knowledge of the about element and their properties went on increasing, different scientists started trying out to different methods of classification. So अलग अलग साइंटिस्ट आए और उनके बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ बनाना है खाने में, अगर मुझे कुछ बनाना है तो मैं मेरी तरीके से बनाऊंगा ना। अगर मुझे ना भी आए तो भी वो मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है, तो मैं जो भी करूंगा वो मेरे सोच के हिसाब से, जो मुझे प्रॉपर लगेगा वो उसके हिसाब से ही मैं करूंगा। तो ऐसे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, उनके थ्योरी के हिसाब से उन्होंने इसे प्रपोज किया और क्लासीफाई किया। सो उसमें से पहले जो साइंटिस्ट है, बहुत ही डायनामिक साइंटिस्ट है बेटा, बहुत ही उनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है कि यहीं से वो शुरुआत हुई थी, जिनकी वजह से ये रेस अभी चालू है और हम पढ़ रहे हैं। ओके, और इस यूनिवर्स के हर एक कोने में जो अलग अलग एलिमेंट्स है, इसकी खोज हम सैटेलाइट्स थ्रू कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ सच साइंटिस्ट वी आर, आवर नेम इज। ओके, अगर ये नहीं ढूंढ पाते तो हम क्या ढूंढ पाते लिटरली। इसके लिए हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। सो बेटा, in the year 1817, a German scientist, Drobenier, suggested Drobenier, ओके ड्रॉबेनियर। तो इन शॉर्ट में आपको बोलता हूँ, ये जो ड्रॉबेनियर ट्राइड्स है, ट्राइड मतलब तीन। सो इन्होंने क्या किया है, तीन एलिमेंट्स लिया है। क्या लिया है? तीन एलिमेंट्स लिया है। सो ये तीन जो एलिमेंट्स है, ये जो तीन एलिमेंट्स है, तो ये तीन एलिमेंट्स में से फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इन दोनों का उन्होंने क्या किया है, जो एटॉमिक मास है, इन दोनों का जो एटॉमिक मास नंबर है, तो इसका ए का एटॉमिक मास और इसका ए का अभी सी का एटॉमिक मास नंबर जो भी उसको कैलकुलेट करके जो मिला है, तो उसको उसने डिवाइड बाई टू किया। टू से डिवाइड करने के बाद जो बीच का बी एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट का उसने क्या किया है, उसका वेट करने के बाद उसको उसका वेट इक्विवेलेंट मिला। बट हर बार ये लॉजिकली प्रूफ होगा ही ऐसा ही भी नहीं है, बट आगे जाके क्या हो गया कि जो मिडल एलिमेंट है वो अलग आने लगा।
उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो अलग आने लगा, वो तो था ही नहीं उसका। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की गड़बड़ियों और खामियों की वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। तो ये सिंपल याद रखो कि इसने 3 एलिमेंट्स लिए, ए, बी, सी नाम दिया गया, ए और सी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर है उसको उसने सम किया, एडिशन किया, डिवाइड बाय 2 किया और उसका जो वैल्यू आया है वो वैल्यू को उसने ये बी एलिमेंट के एटॉमिक मास से मैच किया। तो ये सीधा सीधा बोल रहा था कि बी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर है इनका डिवाइड करने के बाद, इनका सम और डिवाइड करने के बाद विथ 2 जो आंसर आएगा वो बीच का जो एटॉमिक मास रहेगा वो उसका रहेगा। हाँ, तो ऐसे उसने ये थ्योरी को प्रपोज किया। क्लियर है? हाँ, चलो अभी हम देखते हैं। So he made a group of 3 elements such having similar chemical properties called as called them triads. He arranged the 3 elements in a triad in increasing order of an atomic masses. तो increasing order के हिसाब से, बस अभी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि increasing order के हिसाब से उसने atomic masses को रखा था. So that atomic mass in the middle was approximately equal to the mean of the atomic mass of their other 2 elements. देखिए बेटा, अभी फॉर एग्जांपल अगर ये होता है 5, तो ये है 9, तो ये है आपका 14 फॉर एग्जांपल के लिए। सो ये 5 और 14 को अगर हम प्लस करेंगे, हाँ, या अभी ये भूल जाओ, इसका जो एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर बोला था वो भूल जाओ, बस ये दोनों को चीज़ों को याद रखो, ये 5 है या ये 14 है। हम इसको प्लस करेंगे और इसका मीन निकालेंगे, मीन निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। सो 14 प्लस 5 क्या होता है 19, 19 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमको आंसर क्या आएगा, दैट इज 9.5, राइट। तो मैंने 9 बोला था आपको। सो चलो लगभग एका दुक्का चल गया यहाँ पे, 9 इक्विवेलेंट है 9 के पास 9.5। ओके, तो ऐसा एक जुगाड़ उसने निकाला था और हो गया, बट हर बार ये प्रूव नहीं हो रहा था। हाँ, जैसे उसने प्रपोज किया था थ्योरी, हाँ, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट नहीं हो रहा था। जो बीच जो सेकेंड एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास नंबर कुछ डिफरेंट ही आ रहा था हर बार। तो इसकी वजह से ये रिजेक्ट किया गया। इधर आपको टेबल दिया है बेटा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो एटॉमिक मास नंबर आपको यहाँ पे मिला है फॉर द सोडियम, तो ये सोडियम का एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे मैच हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए जैसा स्ट्रॉन्शियम का अलग आ रहा है, ब्रोमाइन देखिए अलग आ रहा है ना, आ रहा है ना। सो ये एक्चुअल एटॉमिक मास, और ये देखिए यहाँ पे मीन आया है, तो डिफरेंट डिफरेंट आते चला गया। तो इसकी वजह से ये थ्योरी को ना आगे जाके कैंसिल किया गया। ये याद रखिए, ये ड्रॉबिनियर ट्रायड जो है ना, ये 11 12 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इस साल आपको पूछेंगे ही, बट अगले साल ये बड़ा होके आएगा आपके पास, क्योंकि अगले साल आप भी बड़े हो जाओगे तो डिफिकल्टी के लेवल भी बढ़ेगा ना, मार्क का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये आएगा ही, साइंस में आएगा ही आएगा, तो डरो मत कि साइंस अब बहुत हार्ड होता है बाबा, कि कुछ भी नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ बच्चा, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, इतना इजी होता है ना कि कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आप बस 9th और 10th का सिलेबस प्रॉपरली याद रख लो। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो यूट्यूब का चैनल है हमारा, और उसके ऊपर आप जाके हमारे वीडियोस के लेक्चर देख भी सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा चैनल है। हाँ, आप लोगों का चैनल है, टेंशन मत लो। तो ये तो आपको पता चल गया कि ड्रॉविनियर ने क्या प्रपोज किया था। अभी हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8, ऑक्टेव मतलब होता है 8। सो ये जो है ना, सो एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, ओके। सो उसके कुछ नोट्स होते हैं बेटा, जो इंडियन म्यूजिक सिस्टम में कुछ नोट्स होते हैं, जो इंडियन आइडल सारेगामापा वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें आपको मालूम ही होगा ये कुछ नोट्स होते हैं, जो सिंगर्स हैं उनको मालूम होगा। बेसिकली सा रे गा मा पा धा नी,
ये कुछ नोट्स है, देखिए मैं वापस गिनता हूँ, आप प्रॉपरली देखिए। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। कितने हो गए? 3 बचे 10 में से 7। तो ये 7 नोट्स होते हैं बेटा। सर सा आपने तो भूल गया। अरे नहीं बेटा, तो ये साइंटिस्ट ने यही पे गेम किया है। अगर ये वापस सा पे आता है तो इसे हम वापस एक पे रखेंगे, मतलब उसको उसके ग्रुप में रखेंगे, सा के ग्रुप में रखेंगे। अगर कितने भी एलिमेंट मिले वो वहीं पे जाएगा, सा में ही जाएगा। तो वो 8th में जाएगा नहीं, वो बचा हुआ जो 8th वन है इसमें जाएगा नहीं, वो किस में आएगा वापस? ये फर्स्ट में आएगा। ओके, तो ऐसे उसने उसको प्रपोज किया था। तो हम इसे हम सप्तक कहते हैं, जो अपर क्लास होता है ना, सुर का जो अपर क्लास होता है, इसे हम सप्तक बोलते हैं। हाँ, तो वो वापस वो वहीं पे जाएगा। ठीक है। सो ये जो 7 नोट्स है ये बेसिकली वेस्टर्न म्यूजिक के नोट्स है बेसिकली। अभी ड्रॉबिनियर तो इंडियन था नहीं, वो क्या सारे गामा पाधानीसा ऐसे मतलब करके करेगा क्या? हाँ, नहीं। सो ये वेस्टर्न म्यूजिक का हेल्प लिया उसने। तो इसमें बोला उसने डो रेमी। डो रेमी जो डोरेमोन की बहन है वो डो रेमी, वो डो रेमी फसोला। मराठी में हम बोलते हैं अगर कोई फंसाता है, ये मुझे फसोला, ये फसोला, तो फसोला, डोरेमी फसोला, डोरेमी फसोला ती बोलतो। ये स्त्रीलिंगी वर्ड है हमारे मराठी में, तो आपको याद हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड है, आपको तो ये मालूम ही है। तो इसे ऐसे याद रखो, डोरेमी फसोला थी। इजी है ना? कुछ याद रखने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत है। डोरेमी फसोला थी, डोरेमी काय सांगू, फसोला थी, डोरेमी फसोला थी। हाँ, तो ऐसे ही इसे याद रखो। तो इसमें डो भी डबल होता है, डो भी डबल फ्रीक्वेंसी में आता है जिसे हम सप्तक कहते हैं। हाँ, जो 8th प्लेस में होता है। सो एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, he was an English scientist named as John Newlands. Okay, so he proposed an theory of Newlands law of octave. ओके, तो इसने एक प्रपोज किया, थ्योरी को प्रपोज किया, जिसे नाम दिया गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव। इन द ईयर 1866 न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स नोन at that time in the increasing order of atomic masses। तो ये भाई ने भी ड्रॉबिनियर की तरह ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा एटॉमिक मासेस। फिर स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने शुरुआत किससे की थी बाबू लोग? किससे शुरुआत की थी? हाइड्रोजन। किससे शुरुआत की थी? हाइड्रोजन, जो लाइटेस्ट एलिमेंट है। एंड एंड अप विद थोरियम, जो हेवीएस्ट एलिमेंट है उसके हिसाब से नोन। ओके, थोरियम। समझ में आ रहा है? सो बेटा आजकल आप एमसीक्यू का अगर पैटर्न देखोगे, एनालिसिस का पैटर्न बोर्ड का, तो बोर्ड क्या कर रही है, आपके टेक्स्ट बुक में से ढूंढ ढूंढ के दे रही है एमसीक्यू। तो कभी कभी आपको लगता है सर मैम ये तो हमें दिया ही नहीं है, टेक्स्ट बुक में था ही नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं, तूने सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं, ये दिक्कत तेरी है, ना कि बोर्ड की। तूने तो अंदर पढ़ा ही नहीं। आजकल के बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कोई गाइड लो, टेक्स्ट बुक और किसी पब्लिकेशन का नोट्स लो, प्रेफर करो, खत्म कर दो बात। आपको ना एक गंदी आदत लगे कि सब पट पट चाहिए, झटपट पटापट चाहिए आपको, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आपको नाम बनाना है ना, इतिहास में नाम उन्हीं उन्हीं लोगों का याद रखता है इतिहास, जो कुछ बनाने के लिए आते हैं। हाँ, रेडीमेड का किसी का कुछ होता नहीं है बेटा, वैल्यू नहीं होता है। देखिए जब कोई टेलर हाथ से अगर धागे को सी के कपड़ा बनाता है और खुद से सिलाता है, तो उसका जो फिनिशिंग होता है और उसकी जो पर्सनैलिटी उभर के आती है वो अलग आती है। और जो रेडीमेड कपड़ा होता है ना, वो भी धागे से ही बनता है बेटा, बट वो होता है रेडीमेड, 100 लोग पहनते हैं उसे। और उन 100 लोगों में अगर आपका फिनिशिंग आप खुद टेलर के पास से सी के लेते हो,
और आप जब स्टैंड आउट होते हो उनके सामने, तो 100 में से आपको ही पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि आप कुछ अलग वहां पे दिखोगे। तो बेटा नोट्स तो हर, मेरा कहने का मतलब ये है कि नोट्स तो हर लोग प्रेफर करते हैं, डाइजेस्ट हर एक लोग प्रेफर करते हैं, बट जो टेक्स्ट बुक से जब आप पढ़ोगे ना, ये कोई अकेला ही होता है ऐसा, वो बी दैट वन, वो अकेला बनना है बेटा हमें लाइफ में। इसीलिए हम पीछे पड़ रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम, हम कोस रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को। बेटा कोसना नहीं है, गलती भी आपकी भी है। जितनी गलती एजुकेशन सिस्टम की है उतनी गलती आपकी भी होती है। ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं बेटा। मैं किसी डिमोटिव नहीं कर रहा हूँ कि आप पब्लिकेशन प्रेफर मत करो, करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट हमें वहां से भी मिलती है, बराबर है। सो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक में जाइए, वो भी पढ़िए और हाइलाइटर्स यूज कीजिए। ओके, क्या कीजिए, हाइलाइटर्स यूज कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है। So he found every eighth element had a property similar to those of element from lithium. ओके, सो इसने हर एक एट्थ एलिमेंट जब आएगा तो उसका प्रॉपर्टी, उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर था उसके फर्स्ट एलिमेंट की तरह, उसके फर्स्ट एलिमेंट की तरह। अभी फॉर एग्जांपल सोडियम, ये एट्थ एलिमेंट है फ्रॉम द लिथियम। सोडियम क्या है, ये एट्थ एलिमेंट है फ्रॉम द लिथियम। ये लिथियम देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो लिथियम से अभी हम काउंट करेंगे बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है। ये कौन पड़ेगा, ये गिना ही नहीं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए यहाँ पे। क्या गलती हो रही है, 8 यहाँ पे आना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, यहाँ पे गलती हो गई मेरे हाथ से, सॉरी। होता है यार, बड़ी बड़ी शहरों में होती है छोटी छोटी बातें। सो ये एट जो एलिमेंट है उसको मिला है फ्रॉम द लिथियम। लिथियम से स्टार्ट जब होएगा, तब लिथियम से स्टार्ट होने के बाद जो एट एलिमेंट आएगा, तो वो कहाँ पे आएगा बेटा, तो वो आएगा वापस फर्स्ट पे। तो लिथियम फर्स्ट था, तो एट एलिमेंट कहाँ पे आएगा, लिथियम की ही लाइन में आएगा। समझ में आएगा। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से जब स्टार्ट होगा, तो उसका जो एट एलिमेंट आएगा तो वो होगा फ्लोरीन। वो कहाँ पे आएगा बेटा, तो वो आएगा वापस हाइड्रोजन की ही ग्रुप में, मतलब दो के ग्रुप में, मतलब सा के ग्रुप में। समझ में आ रहा है बेटा। और ये क्या है, जो भी वो रख रहा है वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रख रहा है, ये भी याद रख लो। क्या याद रखना है, एटॉमिक मास नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसने वेस्टर्न म्यूजिक का हेल्प लिया, डोरी मी फासोला थी, जो इंडियन म्यूजिकल नोट है सारे गमा पा धा नी। और वापस जब एट जो आएगा सप्तक, तो वो वापस रिपीट किया जाएगा फ्रॉम द सप्तक सा। तो सा से लेके नी से वापस सा तक, तो ये सप्तक हो गया कंप्लीट। ये सप्तक हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है। सो ऐसे ही उसने इसको प्रपोज किया था, ये थियरी को। Also magnesium shows similar to beryllium. Magnesium shows similar to beryllium। देखिए ये बेरिलियम यहाँ और मैग्नीशियम यहाँ है। हाँ, सिमिलरली क्लोरीन एंड फ्लोरीन, देखिए ये क्लोरीन और फ्लोरीन। ओके, ये दोनों भी सेम दिखा रहे हैं। हाँ, न्यूलन कंपेयर दिस सिमिलैरिटी विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। तो जो 8 ऑक्टेव्स होता है ना म्यूजिक का, तो मैंने स्टार्टिंग में 8 बोला था। So he called similarities. He called the similarities observed in the eight and the first as the law of octaves. जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट आएगा एट्थ वन, तो वो उनका जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही दिखेगा।
तो ऐसे उसने उसको प्रपोज किया, इसलिए उसने उसका नाम रखा लॉज ऑफ द ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आगे जाके इनके नाम से इन्होंने खोजा, इसलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 मार्क या फिर कभी कभी 3 मार्क के लिए भी लक बाई चांस पेपर अगर इजी सेट करना है तो ये पूछा जाता है। तो आपको एक टेबल भी बनाना है, तो टेबल आपको रट्ठा मार के रखो, उसको याद रख के रखो, घर में एक चार्ट बना के रखो। मैं तो हर बार हर एक साल मैं हर एक स्टूडेंट को यही सजेशन देता हूँ कि बेटा जितने भी चार्ट्स हैं आप पोस्टर बनाइए, आपके घर पे हैंग आउट कीजिए। जब सुबह आप पहले उठोगे तो आपको ये चार्ट के ऊपर आपका नजर जाना ही चाहिए, कंपलसरी जाना चाहिए, और आपको रिवीजन करना ही करना है। सुबह जब भी आप उठोगे तो पहली नजर वहां पे ही होनी चाहिए। हाँ, चलो। सो मेनली यहाँ पे कुछ लिमिटेशन थे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के लॉ में। सो क्या लिमिटेशन देखेंगे? दिस लॉ वॉज फाउंडेड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही ये क्या था बेटा, ये करेक्ट दिखा रहा था, उसके आगे क्या है ना वो गलत हो रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम है ना, मैं एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कैल्शियम तक ही वो करेक्ट दिखा रहा है। सो न्यूलैंड्स फिटेड, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये खामियां है। सो ये आपको नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीसी यूपीसी इतना कठिन पेपर, इतना कठिन क्वेश्चन बच्चों को कभी नहीं पूछती है। ओके, तो नीट के लिए तो आपको ये याद रखना ही है, आगे जाके आपको सीट के लिए भी याद रखना है। हाँ, जो बी फार्म डी फार्म करने वाले रेडियोलॉजिस्ट का एंट्रेंस देने वाले हैं नीट थ्रू, तो ये उनके लिए तो ये याद रखना कंपलसरी है। आप ये याद रखो, जिनको साइंस करना है बेटा कंपलसरी है बेटा, जिनको इंजीनियरिंग करना है, जिनको केमिस्ट्री इंजीनियरिंग करना है फ्रॉम आईआईटी एनआईटी, हाँ, उसके लिए आपको जेई मेंस जेई एडवांस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने होते हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आप वो भी, ये भी चीजें याद रख लो। Newlands fitted Newlands fitted all the known elements in a table of 7 by 8. That is 56 boxes. That is 56 boxes. Ah, so Newlands placed two elements placed two elements each in some box to accommodate all the known elements in the table. जितने भी उसको एलिमेंट्स नोन थे वो अकॉर्डिंगली वो टेबल में रखता चला गया। फ्रॉम एग्जाम्पल कोबाल्ट, निकेल, सिलीनियम, लैंथेनाइड, ये जो एलिमेंट्स है, तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकेल एक ही ग्रुप में रखा, सिलीनियम लैंथेनाइड एक ही ग्रुप में उसने रखा, सा में और मा में। क्यों? क्योंकि उनका जो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, वो बेसिकली सेम ही आ रहे थे। और वो तो कंफ्यूज हो गया, अभी मैं क्या करूं, तो उसने वो दोनों एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया। आगे जाके देख लेंगे, कोई अगर कोई आया और इसको सॉल्व कर लेगा, उसके हिसाब से तो वो सॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ, तो उसने उसको सेम सिमिलर ग्रुप में रख दिया। सो मोर ओवर he placed some elements with different properties under same node in the octave। मतलब उनके अगर प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट भी रहे तो भी उसने उसको एक ही एलिमेंट में, एक ही नोट में उसने रख दिया ऑक्टेव। फॉर एग्जांपल न्यूलैंड प्लेस्ड द मेटल कोबाल्ट एंड निकेल अंडर द नोड डू, sorry do, okay, do, along with the halogens, along with the halogens. He while iron Fe having similarity with cobalt and nickel, तो जो आयन है ना उसके जो प्रॉपर्टीज है वो कोबाल्ट और निकल की तरह सेम दिख रहे थे। सो away from them along the with the non metals oxygen and sulfur under the note T, under the note T,
तो उसने इनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया। ऑल्सो न्यूलैंड ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू एकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अभी ये जब जैसे आगे जाके न्यू एलिमेंट डिस्कवर करने लगा, उनके प्रॉपर्टीज को समझने लगा, तो उसके लिए अभी जगह ही कहाँ बची है। उसने तो बनाया था 7/8 56 एलिमेंट्स हर एक सेल के अंदर, हर एक बॉक्स के अंदर। तो टोटल हो गए 56 एलिमेंट्स, हर एक बॉक्स को उसने एक एक सेल दे दिया। बट अभी कुछ तो डबल डबल दे दिया उसने। बट आगे जाके कुछ नए एलिमेंट्स उसको मिले, तो वो एलिमेंट्स मिलने के बाद उसे अभी दिक्कत आने लगी कि मैं इन एलिमेंट्स को कहाँ रखूँ। So the properties of new element discovered later on did not fit in the Newton's octave laws of octave. तो जैसे ही वो आगे चला गया कुछ टाइम के बाद और कुछ नए एलिमेंट्स मिले, जैसे कि न्यूलैंड्स हो गया, न्यूलैंड्स के बाद और एक साइंटिस्ट आया, उसने उसको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद उसे कुछ नए एलिमेंट्स मिले, तो वो वहाँ पे फिट नहीं हो रहा था उसके लॉ में। तो उस लॉ को ही आगे जाके क्या किया, डिलिमिटेशन दे दिया कि या ये नहीं फॉलो हो रहा है तो ये लॉ आगे जाके फॉलो नहीं किया जाएगा। हम्म? मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल अभी हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भाई साहब को याद रखो, ये बहुत बार आ रहा है बोर्ड में। ये क्वेश्चन बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा बोर्ड के फेवरेट वाले, वो ऊपर के 2-2 मार्क के तो हैं ही, बट जो बड़े वाले होते हैं ना, ये यहाँ से आते हैं बेटा। सो ये रशियन साइंटिस्ट होते हैं। ये कहाँ से बिलोंग होते हैं, ये रशिया से है और ये रशियन साइंटिस्ट है। सो इनका नाम है डिमित्री मेंडेलीव। ये नाम याद रखो बेटा। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के जो साइंटिस्ट है उनका नाम भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, याद रखो। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल डेवलप किया था। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 टू 1872 एडी। यहाँ पे उन्होंने ये प्रपोज किया था, फाइंड किया था। तो इसमें क्या है ना कि जो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एलिमेंट को पहले हम क्लासीफाई करें। सबसे बड़ा स्टेप क्या है कि उसे उस एलिमेंट को हम क्लासीफाई करें। So Mendeleev considered the fundamental property. He considered the fundamental property of the elements, namely atomic mass, as standard, and arranged the 63 known element in that time in an increasing order with their atomic masses. तो इसने क्या किया, एटॉमिक मासेस जैसे इंक्रीज होते जाएंगे उसने 63 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चला गया। देन he transformed this into the modern periodic table of elements in accordance with the physical and chemical properties of elements. Okay, सो आगे जाके इसने क्या किया कि इसे ट्रांसफॉर्म किया पीरियोडिक टेबल में, जो कि एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसके जो फिजिकल पैरामीटर्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अगर फिजिकल क्या बोलेंगे हम, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हाँ, उसको मेटेलिक लश्चर है, उसका हार्डनेस क्या है, हाँ, अगर उसको हम किसी पेट्री डिश पे हम रब करेंगे तो उसका कुछ एफरेंसेस बाहर निकलते हैं क्या, पाउडर निकलता है क्या, फिर उसको कुछ शाइन आता है क्या प्लेट के ऊपर, ये चेक किया जाता है। हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि इसका रिएक्शन किसी अदर एलिमेंट्स के साथ हम करेंगे तो इसका केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, ये फास्ट दिखाएगा, स्लो दिखाएगा रिएक्शन। अगर ये हम खौलते पानी में हम डालेंगे, बॉइल्ड वाटर के अंदर अगर इस एलिमेंट को हम डालेंगे तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा, स्लो ही रहेगा, फास्ट रहेगा। कोल्ड वाटर में डालेंगे तो ये फास्ट रिएक्ट करेगा या फिर स्लो रिएक्ट करेगा। अगर ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इसमें से हीट निकलता है तो ये थर्मल रिएक्शन दिखाएगा या फिर नॉन थर्मल रिएक्शन दिखाएगा, जिसे हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं ना। हाँ, तो ये किस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसने क्या किया है, उसे बेसिस के ऊपर उसको क्लासिफाई किया है।
So Mendeleev organized the periodic table on the basis of chemical and the physical properties of an elements. These were the molecular formulae of hydrates and oxides of the elements. तो इसने जो बेसिस तो क्लियर था, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज था एलिमेंट्स का, और जो इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले थे ये हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स एलिमेंट्स के हिसाब से उसने किया था। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले किसके ऊपर बेस किया था? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। उसका मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी एलिमेंट को अगर हम जस्ट उसको गर्म करेंगे तो वो कब मेल्ट होगा, किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, तो वो टेम्परेचर होता है उस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अगर एलिमेंट मेल्ट हो गया, जब वो खुद से खोलेगा उसमें बॉइलिंग आएगा, बबल्स आएंगे, तो वो हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट उस कंपेरेटिवली कम होगा उस एलिमेंट का। एंड डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, तो उसकी डेंसिटी क्या है, क्योंकि डेंसिटी बहुत मैटर करता है बेटा, क्योंकि डेंसिटी की वजह से ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम समझ सकते हैं। एंड देयर हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स। ओके, आपको ये ग्रुप में आर एच दिख रहा है, आर एच, तो ये है हाइड्रेट्स, और आर ओ जहां जहां पे आपको दिख रहा है वो है ऑक्साइड्स। ओके, सो मेंडेलीव फाउंड दैट elements with the similar physical and chemical properties repeat after definite interval। तो उसने क्या कहा कि जैसे ही आप आगे जाओगे टाइम में, अलग अलग इंटरवल में, तो ये प्रॉपर्टीज कुछ रिपीट भी हो रही है, कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। जैसे न्यूलैंड डॉक्टर बाबा थे, तो उनके भी वहाँ पे जो सप्तक उन्होंने रखा था, म्यूजिकल नोट, तो उसका जो 8th सप्तक है वो वापस सा में आ रहा था, और कुछ कुछ तो रिपीट हो रहे थे, सेम उसने सेल में रखा। जैसे कोबाल्ट और निकेल को याद रख लो बेटा। हाँ, कोनी, हाँ, मुझे तेरा कोना लगा, कोनी, कोनी रिपीट हो रहा है। हाँ, कोनी, ऐसा याद रखो, कोबाल्ट और निकेल। सो ऑन द बेसिस of this finding, Mendeleev stated the periodic table, following periodic table। तो उसने ये फाइंडिंग के ऊपर उसने एक periodic table डिफाइन किया। So properties of elements are periodic functions of their atomic masses। तो इसने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स के होते हैं ये periodic functions होते हैं किसी भी एटॉमिक एलिमेंट्स के, तो उसको हम वापस चेंज भी कर सकते हैं, ये भी उसने कहा। ओके, तो इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स बनाए, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, हाँ, ऐसे सीधा, हाँ, तो ये सब क्या है बेटा, ये है आपके वर्टिकल कॉलम्स। ये क्या है? वर्टिकल कॉलम्स। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल रो, इसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल रो। ये हो गया आपका वर्टिकल कॉलम, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रो। तो एक किसी भी कंपनी में क्या होता है बेटा, एक वाइस चेयरमैन होता है और एक उनका एचआर भी होता है। वाइस चेयरमैन तो हायर नहीं करता है, एचआर करता है हायर, करेक्ट। तो इसने क्या किया, कौन सा एलिमेंट किस चेयरमैन की पद के लिए लायक होगा, तो उसको उस एचआर ने उस एलिमेंट को, उस एम्प्लॉय को उसको उसके सेल में रख दिया। ऐसे याद रख लो। हाँ, जैसे कि टाटा की कंपनी ले लो, टाटा मोटर्स है, टाइटन की घड़ी है। मैं पिक्चर देखा है अभी जस्ट रिसेंटली, इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। उनका लैंड रोवर का कंपनी है खुद का, करेक्ट है। तो उनका वीसी भी अलग अलग होगा ना, उसके एम्प्लॉय भी अलग अलग होंगे ना। तो हर एक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 7, ग्रुप 8 तक आपको ये जो ग्रुप्स मिल रहे हैं, तो उनके हर एक ग्रुप में अलग अलग आपको क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो उसने वो आर ओ मतलब आपको जो ऑक्सीडाइज्ड मिल रहा है, हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स, यहाँ पे बोला था ना हमने, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स।
ये आरओ मतलब ऑक्साइड्स हो गया, ओ आपका दिख रहा है ना, ओ ऑक्साइड्स, देखिए एच हाइड्रेट्स। हाँ, तो इस पूरे ग्रुप में आपको ऑक्साइड्स ही मिलेंगे, ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स है। यहाँ पे आपको ऑक्साइड्स भी हैं और हाइड्रेट्स भी हैं, हाइड्रेट्स भी हैं, ऑक्साइड्स भी हैं, हाइड्रेट्स भी हैं पहले और बाद में ऑक्साइड्स हैं। पहले हाइड्रेट्स है, बाद में कुछ ऑक्साइड्स हैं और बाद में कुछ यहाँ पे जो मिले हैं ये ग्रुप 8 में, ये तो सभी के सभी क्या है रे, ये सभी के सभी ऑक्साइड्स हैं। बट आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा कि जो एलिमेंट्स हैं जैसे न्यूलैंड ऑक्टेव का हो गया था, उसी तरह से इसमें भी जो एग्जाम्पल लिया तो उसकी मेल्टिंग प्रॉपर्टी, उसकी बॉइलिंग प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल रिएक्शन का टाइम, फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये जब स्टडी किया उसने तो उसको कुछ एलिमेंट्स रिपीटेडली एक ही ग्रुप में उसने रख दिया क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रहे थे, इसलिए ये आप याद रखो, ये इसको याद रखना है, बस इसी ग्रुप 8 को याद रखना है। देखो आपको किसी अदर ग्रुप में ये रिपीट ऐसे होते हुए दिखेगा नहीं बेटा। दिख रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या आपको रिपीटेड? नहीं, नहीं दिखेगा। बस ग्रुप 8 में ही आपको ये रिपीटेड होते हुए दिख रहा है, तो ये याद रखो। ओके, आपके जब एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो आपके जो एक्सटर्नल आएंगे तो वो एक्सटर्नल आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस ग्रुप में मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की किस ग्रुप में एलिमेंट्स रिपीटेडली एक ही सेल में रखा गया है, डिपेंड्स अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको नाम क्या देना है, नाम आंसर क्या देना है उसको आपके एग्जामिनर को, तो उसका आंसर है ग्रुप 8। क्या है? ग्रुप 8। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये बाबा हैं दिमित्री मेंडेलीव, दिमित्री मेंडेलीव। ओके, जो कि पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। ओके, प्रोफेसर होना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। ओके, हम तो उनके नज़दीक भी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ओके, तो उनका उनका थिंकिंग लेवल, उनका सोच, बड़ा बच्चों को पढ़ाने का लेवल, वो सोचो। तो कोई भी आप अब कुछ गलत कमेंट करने से पहले या फिर कुछ गलत थिंक लाने से पहले आप समझ लो कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। ओके, तो लेवल को जज करो, बाद में आप कुछ कमेंट करो। सो he made a separate card for every known elements showing its atomic masses. He arranged the cards accordance with the atomic masses and the properties of the elements, which resulted in the invention of modern periodic table. So यही साइंटिस्ट है और जिनकी वजह से आज हमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला है, इनके बदौलत ही मिला है। अगर ये ना होते तो आज हमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला है वो मिला ही नहीं होता, तो इसलिए इतने इम्पोर्टेंट है। So merits of Mendeleev's periodic table. So ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरिट्स और डीमेरिट्स, इसके ऊपर गारंटीडली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर बार। ओके, हर बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये याद ही रखना है। ओके, सो आज का सेशन हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे ही एज सुन एज मैं फ्री होऊंगा, आपको पहले मैं आपको क्या करूँगा, हाईली प्रेफरेंस पे आप क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, और आपको पर क्लासेस ज्वाइन करना है तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेटा। ओके, और आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर सच थिंग्स। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगती है
सो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी ग्रुप सर्कल है व्हाट्सएप पे, उन सभी ग्रुप्स को आपके प्रियजन जो है, आपके फैमिली मेंबर्स में जो अलग-अलग गाँव में रहते हैं या फिर अलग-अलग शहरों में रहते हैं, उन्हें भी अपना चैनल शेयर कीजिए। हो सके तो उन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिए कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उनको भी बोलिए कि कंडीशन रखें कि आप उसे अगर अच्छा लगता है, उसे समझ में आता है कुछ हमारे अपने चैनल से, हाँ, अपने चैनल से कुछ समझ में आता है तभी उसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए लगाएँ और बेल नोटिफ़िकेशन के लिए प्रेस करने के लिए बोलिए। ठीक है? तो हमारे जो भी अपने अपने जो भी वीडियोज़ होते हैं ना, तो आपके पास पहले पहुँचेंगे बेटा। हुँ? तो अगर मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो बेटा।